Good afternoon, everyone. I'm Kanika Jain, moderator of today's webinar. I welcome you all for today's webinar on Code of Ethics, revised 2019, issued by ICAI. Friends, as soon as we qualify our Chartered Accountancy course and get enrolled ourselves as member in Register of Members of ICAI, we seek some professional guidelines. What to do, what we have right to do, and what is right to do. So, Code of Ethics is the guidelines framed by ICAI so that we work according to our professional guidelines and we do not conduct anything which is not good at part of our profession and which can bring disrepute to the profession. The Code of Ethics were first introduced when CA Act was made, and it has been amended from time to time considering the situations, the facts that were coming. Finally, in 2009, it was aligned with international ethics standards both for accountants for Code of Ethics 2005 for the first time. And recently, it was revised in year 2019. Everyone has questioned that if we do this, is it right on a professional front or it is not allowed? As we are all aware, CAs are not allowed to advertise. But we find many who actually advertise in a way or other. So is it right? Or what should be the way to advertise? All this is explained in Code of Ethics. And whenever we do professional misconduct, we are actually punished by ICAI or reprimanded for the same. So today we have CA Jagjeet Singh Jags to guide us all on this Code of Ethics which has been revised in year 2019. Can I have a huge round of applause for Jagjeet Singh Jags? CA Jagjeet is a qualified chartered accountant is in practice in Delhi. He has cleared his professional chartered accountancy course in 2008, and thereafter he pursued many certification courses by ICAI, that is concurrent audit of banks, forensic accounting and fraud detection, GST, anti-money laundering, and so on. As a speaker, he has an experience in fields of soft skills, accounting standards, professional ethics, income tax, DVAT, service tax, GST, outcome of budget, forensic audit, bank audits, and many other areas in various branches of Northern and Central ICAI. He has also been a GST trainer in Training House of Office of Director General of Audit, Delhi. He has also been awarded as GMCA's Best Faculty Award of NIRCE of ICAI in year 2015. He has also taken lectures in MBA institute and universities. Besides that, he has also experience as a speaker in North Campus CS Study Circle, ICAI, Janakpuri CPE Study Circle, Karnal branch of NIRC of ICAI, Shastrinagar CPE Circle, and he is also a deputy convener of Shastrinagar CPE Study Circle from 2013 to 2018. As a practicing chartered accountant, he has experience in litigations, appeals, objections, assessments of both direct and indirect tax matters, has a wide experience in statutory audits, internal audits, and bank audits. He has been serving the fraternity through delivering the lectures on various professional topics and has guided his clients
in complying with all the statutory statutes, being taxation and company related matters. So Jagjeet ji, thank you for coming for today's webinar and to guide us all regarding code of ethics which should be followed by all of us and which has been revised in 2019. Over to you, Jagjeet ji. Okay, very good afternoon, everyone. Before start our presentations on Code of Ethics 2019 revised, first of all, I would like to thank to Kanika ji and Vishal ji, जिन्होंने webinar में दोबारा से मौका दिया and to present this the recent adjustment or like the recent updation in the Code of Ethics 2019 of ICI. So before showing the presentation part, so now I have pressed the button and you will find one line at the bottom of Code of Ethics. So ethics is knowing the difference between what you have right to do and what is right to do. सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली. सो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई होप के जितने दोस्त मुझे सुन रहे हैं सभी के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. ऑल आर प्रैक्टिसिंग, होपफुली इसमें सर्विस वाले भी होंगे डेफिनेटली. So the meaning of this line is ethics is knowing the difference between what you have right to do. हमारे पास अधिकार क्या है करने के and what is right to do. उसमें से हमें सही क्या करना है, right? Hello, I'm audible, Kanika ji? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. बीच में तो वॉइस बंद होगी तो satisfy होना. Okay. So what you have right to do, आपके पास क्या अधिकार है करने के लिए और उसमें से सही आपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उनको यूज करते हुए उनको यूटिलाइज करते हुए what you can do the right in the market like the for the interest of public. So यहाँ पर इस चीज को समझेंगे. अगर मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड चलाता हूँ तो वहां पर आ जाएगा द मीनिंग ऑफ एथिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पास राइट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें राइट दिए हैं एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए सर्विस पर्सन व्हेन वी आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट एज ए एम्प्लॉय ऑफ द इंडस्ट्री. सो हमारे कुछ राइट्स हैं, वी हैव सम ड्यूटीज, वी हैव सम रिस्पांसिबिलिटी आल्सो जो हमें मैनेज करनी है. सो द कोड ऑफ एथिक्स विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आए हैं 2019 ऑनवर्ड्स में, जो भी आए हैं लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उसी के बारे में बात करेंगे. पुरानी कोड ऑफ एथिक्स को समझेंगे कि पुरानी कोड ऑफ एथिक्स द ओल्ड कोड ऑफ एथिक्स होती है हमारी 2009 वाली जो 11th एडिशन था आईसीआई का, उसमें क्या था एंड what is like the addition or the modification done by the ICI in the new code of ethics revised 2019. अब पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड चलाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजों को समझ लें कि कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिनकी वजह से कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट मार्केट में है. मार्केट में एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए सर्विस पर्सन इन द इंडस्ट्री, बट यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? सो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक बारी थोड़ा सा समझ लेते हैं. मेरे पास कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो डिसिप्लिनरी कमिटीज के हैं. उनमें से 2-3 डिसीजन मैं आपको पढ़ के और थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन सो दैट हमें पता चल जाए कि कोड ऑफ एथिक्स 2019 हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. जब तक हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि व्हाई शुड आई अप्लाई दिस कोड ऑफ एथिक्स इन आवर प्रोफेशन. वी हैव टू मेंटेन दिस कोड ऑफ एथिक्स अगर हम फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं इन द फ्यूचर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस कोड ऑफ एथिक्स. सो पहला डिसीजन की मैं बात करता हूँ. ये जो डिसीजन है इसका जो सब्जेक्ट है वो है डिड नॉट डिस्क्लोज material facts known to him. Basically ये जो लाइन है did not disclose material facts known to him. The meaning of this कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑडिटर ऑफ द कंपनी है, उसने ऑडिट के दौरान कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसके पास थी बट उसने वो डिस्क्लोज नहीं किया at the time of reporting, at the time of
रिपोर्टिंग लाइक नोट्स ऑन अकाउंट में उसने मेंशन नहीं किया, उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसको मेंशन नहीं किया, सो डिड नॉट डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स नोन टू हिम। अगेन इट्स ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर किसी ऑडिटर को पता है कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा ऐसा फैक्टर है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है which is material which is material, then he has to the auditor has to disclose in the notes on account or in the audit report जो वो देने जा रहा है उस कंपनी के फेवर में। तो इस केस में क्या हुआ, कहते हैं द कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन एज रिक्वायर्ड। कंपनी ने क्या किया कि उसकी जो एसेट्स थी उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन थी वो तो प्रोवाइड की, बट वो जो एक जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको ना अप्लाई करते हुए उसने उसको अंडर डेप्रिशिएट किया। So the company had under provided depreciation. It did not bring out this fact in his report. उस ऑडिटर ने उस फैक्ट्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहीं मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, held the chartered accountant was guilty of professional misconduct under this clause. He had failed to disclose the material facts known to him, but disclose of which was necessary to make the financial statement not misleading. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कोई फैक्टर ऐसा है विच इज मटेरियल फॉर द इन्वेस्टर, विच इज मटेरियल फॉर द बैंकर्स, विच इज मटेरियल फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, विच इज मटेरियल लाइक इन द पब्लिक इंटरेस्ट, देन दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर कि उसे उस फैक्ट्स को मिसलीड नहीं करना, उस इंफॉर्मेशन को मिसलीड नहीं करना, उसको प्रॉपरली उसे डिस्क्लोज करना है। तो यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी उस जो इन्फॉर्मेशन उस कंपनी की थी जहां पर उसको अंडर वैल्यू किया गया था, अंडर डेप्रिशिएट किया गया था, उसका डिस्क्लोजर देना था जो उसने नहीं दिया, सो फाइनली मिसकंडक्ट हुआ। एक दूसरा केस है जिसमें हैवी कैश ट्रांजैक्शन नॉट रिपोर्टेड। द टाइटल ऑफ द नेक्स्ट केस इज हैवी कैश ट्रांजैक्शन नॉट रिपोर्टेड। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या जाएगा। जैसे हम स्टॉक ऑडिट करते हैं सेक्शन 44 एबी में, तो सेक्शन 44 एबी में कुछ रिपोर्टिंग के टाइम पे कुछ ऐसे क्लॉज है जहां पर आपको ये बताना है कि किसी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, क्या उसने कोई कैश ट्रांजैक्शन की है। अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन की है, जैसे 269 के सेक्शन में वो दिया गया है कि अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन एक लिमिटेड एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से अगर हायर साइड पे जाती है, देन दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर और द टैक्स ऑडिटर, he has to mention in the audit report and he has to disclose that information in the tax audit report. इस केस में क्या हुआ, where a chartered accountant failed to bring attention to the heavy cash transaction entered into by the SSC in his audit. उसने अपनी 3CD की रिपोर्ट फाइल की, 3CD की रिपोर्ट में उसने उन ट्रांजेक्शन को हैवी जो कैश ट्रांजेक्शन थी उसमें उसको कोर्ट ने किया। इससे क्या हुआ, held the responsibility of within the meaning of clause 5, clause 6, clause 7 and clause 8 of 1 of the second schedule. सभी को पता है, सभी ने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा हुआ है 2009, और पुरानी जितनी भी कोड ऑफ एथिक्स है उसमें हमने देखा है कि कोड ऑफ एथिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए रूल्स के अंदर उसने इंस्टीट्यूट में उसने 2 शेड्यूल दिए हैं, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड। फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है, we have 4 part in the first schedule and we have 3 parts in the second schedule. So ये second schedule के first part की बात करता है जिसमें clause 5, clause 6, clause 7 and clause 8 लग गया, और वो पर्सन एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट वो गिल्टी हुआ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ, इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिनरी कमेटी ने उसके ऊपर डिसीजन लिया और उसको डीबार किया। तीसरा एक इंपॉर्टेंट केस है, द टाइटल ऑफ दिस केस इज अकाउंटेंट कम ऑडिटर एंड इम्प्रॉपर ऑडिट। हम सभी को पता है कि if you are working as a statutory auditor of the company, then you cannot be like a accounting service provider. Means accounting service provider means you cannot draw the books of account of the company, you cannot write the books of account of the company if you are working as a statutory auditor of that company. So in this case, what happened in this case, a chartered accountant wrote the books of the accounts of the association apart from conducting the audit. तो एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट भी लिखे और उसी ने ही उसका ऑडिट भी किया, टैक्स ऑडिट भी किया, स्टैट ऑडिट भी किया। अगर हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी में एक प्रिंसिपल है, मेकर कैन नॉट बी ए चेकर।
ये दोनों प्रोफेशनल पर्सन शुड बी डिफरेंट. अगर कोई अकाउंटेंट, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी को अकाउंट राइट करता है, लिखता है, तो उसका स्टैट ऑडिटर नहीं हो सकता. अगेन इट इज ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट under the clause 6, 7, 8, 9 of the part 1 of the second schedule, where the chartered accountant giving a wrong information, not complying with the not complying with the act of this Chartered Accountant Act 1949. So again, it's a professional misconduct. Even in this case, disciplinary committee ने जो decision दिया, उसके against दिया chartered accountant के against. Even the High Court also accepted the decision of the council. उसने हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद भी हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया. किसके? काउंसिल ऑफ आईसीआई. सेम उसमें चला. अब लास्ट एक और बात कर लेते हैं. द फोर्थ वन, द टाइटल ऑफ दिस फोर्थ केस इज इनकरेक्ट फिगर इन द शेयर कैपिटल. It is the duty of the auditor while auditing the books of account of the company. He has to check everything. Related to that this financial year का वो audit कर रहा है. इस केस में क्या हुआ? The respondent being the statutory auditor of the company wrongly mentioned his authorized share capital. चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया? अपनी ऑडिट को, अपनी जो रिपोर्टिंग उसने दी है कंपनी को, उस अथोराइज शेयर कैपिटल के अमाउंट को रॉन्गली मेंशन, रॉन्गली मतलब अमाउंट जो का कम से even and he also failed to report the allotment of 72,660 equity share of rupees 10 each. क्योंकि उसने ऑडिट नहीं किया प्रॉपर्ली. अगर उसने ऑडिट किया होता तो उसको पता होता कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, एमसीए में जो फॉर्म्स अपलोड हुए हैं और उसकी जो शेयर अलॉटमेंट हुई है और उसकी जो अथोराइज शेयर कैपिटल इनहांस हुई है, इंक्रीज की गई है, उसमें नंबर ऑफ शेयर बढ़ाए गए हैं, वो उसने और इसकी वजह से उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अथोराइज शेयर कैपिटल को एक तो रॉन्ग मेंशन किया. इंस्टेड ऑफ 50 लाख ही मेंशन 5 लाख. एंड अनदर थिंग, जो कंपनी ने 72,660 के जो इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से जो इशू थे, उसने उसको भी इशू शेयर कैपिटल के नीचे मेंशन नहीं किया. सो अगेन इट्स अ नेग्लिजेंस by the chartered accountant. So it's a guilty of the professional misconduct falling within the meaning of clause 6 of the part 1 of the second schedule. तो ये चार इंपॉर्टेंट केस मैंने कुछ जो हमारे जो आईसीआई की जो बुक है केस रेफरेंस वाली, वहां से मैंने सिलेक्ट किए. द पर्पस टू मेंशन दिस केस, द डिसीजन ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी, यहाँ पर मेंशन करने का जो पर्पस था वो यही था कि बिफोर स्टार्ट आई कोड ऑफ एथिक्स, बिफोर आई स्टार्ट टू एक्सप्लेन द न्यू कोड ऑफ एथिक्स 2019, we must understand the importance of the code of ethics. So now I am going to start my presentation. I think everybody is clear कि अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं and what is the importance, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं. अभी मैं फर्स्ट स्लाइड को, यहाँ पर कुछ और केसेस हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इसमें. अच्छा, इसमें एक और केस है जो मैं इसमें आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. तीसरे वाला आप केस देखेंगे, द थर्ड लाइन में जो लिखा हुआ है, पोसेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड बाय द मेंबर. जजमेंट जो आई है डिसिप्लिनरी कमेटी की, वो आई है 5 मार्च 1990. नीचे लिखा हुआ, वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग ए टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस वाज सर्च इन कनेक्शन विद द टैक्सेशन मैटर ऑफ द ओनर ऑफ द सैड प्रॉपर्टी. इस केस में क्या हुआ, जो इस प्रॉपर्टी का जो ऑनर था, उसके केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस ऑनर की प्रॉपर्टी में, जहां पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट टेनेंट के तौर पे रह रहा था, उसका ऑफिस था वहां पे, उस ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च किया. जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च किया और साथ में वो जो प्रॉपर्टी जो एक टेनेंट को दे रखी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रखी थी, तो वहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च का प्रोसेसिंग स्टार्ट की. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस के अलमीरा में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फाइल थी. और वो फाइल कौन सी थी? जो ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी है, जो प्रीमाइसेस के जो ऑनर है, जो मालिक है, उसका कुछ साल पहले एचयूएफ के केस की असेसमेंट हुई थी, जो इसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने करवाई थी. और एचयूएफ के उस केस के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फाइल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फाइल चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलमीरा में से फाइंड आउट हुई. तो जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी कंप्लेंट इंस्टीट्यूट में की और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट
गिल्टी पाया गया उसमें, राइट। तो यहाँ पर भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और उसको फिर 5 years के लिए आईसीआई ने उसे डिबार कर दिया, उसको प्रोफेशन से बाहर कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में जो हमें बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए मेंबर ऑफ द आईसीआई हमें ये चीजें मेंटेन करनी है। नाउ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स। 10 मिनट इसके ऊपर लगाऊंगा, कुछ और चीजें हैं इसमें, उसके बाद देन वन बाय वन हम प्रीवियस जो पुरानी हमारी ओल्ड कोड ऑफ एथिक्स है उससे हम न्यू कोड ऑफ एथिक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर न्यू कोड ऑफ एथिक्स के में उसमें हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे अप्लाई करना है, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय पीपीटी, so definitely I will discuss with you. History of the Code of Ethics of ICI. अगर इस ICI के हिस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली ICI जो 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था रेगुलेट एंड द प्रोफेशन ऑफ द अकाउंटेंसी इन इंडिया, एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। कोड ऑफ एथिक्स का जो पर्पस था, वो इसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को मेंटेन करने के लिए कोड ऑफ एथिक्स को 1949 में डिजाइन किया गया। डिजाइन करने के बाद द कोड ऑफ एथिक्स पहले बिफोर आज तो हमें कोड ऑफ एथिक्स के नाम से जानते हैं, अर्लियर द नेम वाज कोड ऑफ कंडक्ट। तो 2001 में इसका नाम कोड ऑफ कंडक्ट से चेंज होकर कोड ऑफ एथिक्स कर दिया गया। आईसीआई ने अपना पहला एडिशन जो है 1963 में निकाला था कोड ऑफ एथिक्स का, और इसका फर्स्ट एडिशन जो था लाइन विद आईएफएसी के साथ जो निकाला था आईसीआई ने, दैट वाज इन द ईयर 2009 में। बट 2009 में जो आईसीआई का एडिशन था वो 11th एडिशन था। और अभी जो रिसेंट एडिशन जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है, जो रिवाइज वाला 2019 वाला, वो हमारी जो पिछले साल की 2019 की जो फैब में जो इंस्टीट्यूट की जो एनुअल फंक्शन हुआ था वहां पर इसको डिक्लेयर किया गया था, इसको अनाउंस किया गया था। और ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये एप्लीकेबल कब से है, मैंने जो पीपीटी में लिखा हुआ फर्स्ट पे लिखा हुआ है, नाउ इट हैज बीन चेंज, नाउ द एप्लीकेशन, नाउ दिस कोड ऑफ एथिक्स इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। Why this code of ethics is important for the professional chartered accountant? Like the profession के लिए क्यों important है? कहते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट जो है, जो इंटरनेशनल एक बॉडी है, in its guidelines on the professional ethics for the accountancy profession has stated that the person who pursue a vocation in which they offer their knowledge and skill in the service of the affairs of the others have responsibilities and the obligation to those who rely on their work. क्या कहना चाहता है इसमें आईएफएसी? वो कहते हैं कि जो भी ऐसा पर्सन, जो भी ऐसा प्रोफेशनल जो एक ऐसे पेशे को चलाता है, एक ऐसे प्रोफेशन को चलाता है जिसमें वो अपनी नॉलेज और स्किल से जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और डिसीजन दे रहा है अफेयर्स ऑफ द अदर्स के ऊपर, एंड उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑब्लिगेशन टू दोज हू रिलाई ऑन देयर वर्क। अगर मैंने किसी कंपनी की बैलेंस शीट को सर्टिफाई किया, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैंने ऑडिट किया, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंने किया, और अपनी रिपोर्ट में मैंने उसके जो अफेयर्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ अपने डिसीजन दिए अपनी नॉलेज के बेस पर, अपने स्किल्स की हेल्प से। वो जो डिसीजन है उन डिसीजन पर बैंक रिलाई कर कर उस कंपनी को, उस एसोसिएशन को, उस मेरे क्लाइंट को कुछ लोन प्रोवाइड करता है। या मैंने एक ऐसी कंपनी का ऑडिट किया, उसकी जो रिपोर्ट की मैंने ऑडिट रिपोर्ट, वो एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ माय रिपोर्ट द पब्लिक का उसमें एज ए इन्वेस्टर के तौर पर उन्होंने अपना कुछ पैसा, कुछ डिपॉजिट इस कंपनी को दिया और उसमें इन्वेस्टमेंट किया, राइट। So the duty of this, the chartered accountant, the professional person, the responsibility and the obligation towards the public interest means पब्लिक के हित में काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी ड्यूटी यस निभानी है। किस तरीके से निभानी है? द अकाउंटेंसी प्रोफेशन में कौन कौन से पब्लिक कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट, क्रेडिट गारंटर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई, इन्वेस्टर्स, business and financial community, and the others rely on the objectivity and the integrity of the professional accountant. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो वो रिपोर्ट दिया है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर तो डेफिनेटली पब्लिक भी उसके ऊपर पेश करती है, क्लाइंट भी है, क्रेडिटर्स भी हैं, ग्रांटर्स भी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है, एम्प्लॉयज भी है, इन्वेस्टर भी है, एम्प्लॉयज भी हैं। एंड द थर्ड लाइन में मैंने लिखा
देखा है the reliance imposes public interest responsibility on the accountancy profession. तो कहीं ना कहीं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, that is very very important. So that is why this code of ethics is very important for the professional. Before signing any document, before attest any document, the chartered accountant, the professional person has to understand the value of the data which is going to enter into the market, and the other person like the public, like the bankers, like the guarantors, they are relying on your statement. So your duty to maintain that professional, the code of ethics, and we have to work in the interest of public. Code of ethics, oh, according to IFAC, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो कहते हैं कि a professional accountant responsibility is not exclusively to satisfy the need of the individual. जिस इंडिविजुअल क्लाइंट ने हमें अपॉइंट किया है, हमारी ड्यूटी सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं है और एम्प्लॉयर वहां तक सीमित नहीं है. द स्टैंडर्ड ऑफ द अकाउंटेंसी प्रोफेशनल आर हेवीली डिटरमाइंड बाय द पब्लिक इंटरेस्ट. लाइक मार्केट में जो प्रोफेशनल है, दे आर वर्किंग इन द मार्केट एज ए इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एज ए इंटरनल ऑडिटर. So as an independent auditor, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं, then you have the duty of the independent auditor is to help to maintain the integrity and efficiency of the financial statements presented. Means the financial institution for the purpose of loan and obtaining capital from the investor. कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट को सर्टिफाई करता है, अटेस्ट करता है, तो वो क्या करता है, help to maintain the integrity and the efficiency of the financial statement, so that the bankers आपकी साइन किए हुए डॉक्यूमेंट पे, आपकी साइन की हुई बैलेंस शीट पे रिलाई कर उस कंपनी को लोन दे. Next, the financial expert. So the duty of the financial expert to manage the finance resources of the organization efficiently and effectively, means the up to the mark. So the financial expert, as a professional person, financial expert, they are working in the big firms. So what is the duty of the financial expert? To manage the finance, the resources of the organization at optimum level. The third one is internal auditor. So duty of the internal auditor to help to understand and provide assurance about the sound internal control system of the organization. क्योंकि इंटरनल कंट्रोल की जो ड्यूटी है कि वो इंटरनल कंट्रोल को साउंड सिस्टम में मैनेज करे और उसके ऊपर रिपोर्ट करे, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर के ही वर्किंग के ऊपर रिलाय करके स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट करता है. नेक्स्ट, एज ए टैक्स कंसल्टेंट, अगर कोई प्रोफेशनल मार्केट में एज ए टैक्स कंसल्टेंट बैठा है, yes, of course, we are also working as a tax consultant in the market. So we are not working to evasion of the tax, but we are in the market to manage the tax. So help to understand and build a system to meet various tax compliances. आज एक कंपनी, आज एक क्लाइंट हमारे पास आता है और आके हमें कहता है कि हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दीजिए, हमारे कंप्लायंसेस को आप मेंटेन कर लीजिए, हमारे ड्यू डिलिजेंस आप मेंटेन कीजिए. So as a tax consultant, our duty is what? To understand the tax liability of that client and to meet the various tax compliances. So the next one is management consultant. Management consultant की जो duty है, help to build a sound management system in the organization towards the public interest. Last line एक बार पढ़ते बहुत important है. So the professional accountant has an important role for the society, investors, creditors, employers, and other business community, and also for the government and the public. So ये last वाली line से ये clear हो जाता है, the duty of the professional is very tough. The duty of the professional is very important. For the public interest, we have to work in the for the interest of public. So yes, we have to maintain this code of ethics issued by ICI. कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पर जिसकी वजह से हमें कोड ऑफ एथिक्स में बहुत चीज ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग एज ए जब हम सर्टिफिकेट देते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सर्टिफाई करते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन करते हैं, एसेट वैल्यूएशन करते हैं, इवन कई बार हम किसी कंपनी के क्रेडिटर्स को भी सर्टिफाई करते हैं. समटाइम वी सर्टिफाई द सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन आल्सो. समटाइम कुछ ऐसे ड्यू डिलिजेंस के जो सर्टिफिकेट्स हैं, एश्योरेंस के सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ और बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस सर्टिफिकेट हैं जो हम सर्टिफाई करते हैं. तो
basically the list of these items basically talk about the various like the areas where the chartered accountant, where the professional setting gives the certification, like do the certification part. Code of ethics. Old code of ethics actually divided into two parts, जो मैंने पहले भी आपको मेंशन किया. जो पार्ट ए है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करता है, जनरल प्रिंसिपल की बात करता है, और जो पार्ट बी है, पार्ट बी टॉक अबाउट द टोटल रूल बेस, यानी कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2. अब इसको थोड़ा सा एक बार बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको पढ़ते पढ़ते फटाफट आगे चलेंगे, ताकि जो है हमें पुरानी वाली एक बार समझ में आ जाए कि पुराना क्या था. देन वी कैन अंडरस्टैंड सो व्हाट इज द न्यू, what are the like the additions in the new code of ethics. So part A जो बात करता था वो करता था फंडामेंटल प्रिंसिपल की. इसमें पहला पढ़ेंगे तो पहली बात करता था सेक्शन 110 में इंटीग्रिटी की. So meaning of the integrity means the quality of straightforward and honest should not be influenced by self-interest. So while giving report, इंटीग्रिटी के ऊपर मैं आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल जो मैंने लाइफ में देखा है, अभी पिछले साल ही मैंने केस देखा है while doing this जीएसटी ऑडिट. मैं कंपनी में जीएसटी ऑडिट करने गया और उस कंपनी का जीएसटी ऑडिट कर रहा था एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी. वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है दिल्ली की है वो कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से, उसने पार्टनरशिप फॉर्म का बेसिकली बिजनेस को टेक ओवर करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई थी. उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट को जब मैं देख रहा था, उसके एनेक्चर पार्ट में मैं देख रहा था, शेड्यूल्स देख रहा था, तो वहां पर एक लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन. तो लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन में मैंने देखा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो उस कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर था जिसने उसकी बैलेंस शीट को साइन किया था, उसी पर्सन का एचयूएफ का अकाउंट, यानी कि उसने अपने एचयूएफ अकाउंट से उस कंपनी को 50 लाख रुपीस का लोन दे रखा था. अब जहां पर एक ऑडिटर ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 50 लाख रुपीस का लोन दे रखा है, एंड ही इज आल्सो वर्किंग एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, तो ये वाली जो इंटीग्रिटी वाली जो लाइन है, यहाँ पर वो इसके कंप्लायंसेस को, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट को, यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस को वो समझ नहीं रहा, और उसने उस कंपनी को 50 लाख का लोन भी दिया और उस कंपनी की बैलेंस शीट को साइन भी किया, जहां पर वो कहां पर वो जाके इंटीग्रिटी में रुका, सेल्फ इंटरेस्ट. क्योंकि उस कंपनी में उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड 50 लाख रुपीस इन दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड डेफिनेटली he will be, he is getting the interest amount on that amount, like the investment amount 50 लाख रुपीस, उसके ऊपर अगर 5% भी ले रहा होगा तो भी अच्छा एक हैंडसम अमाउंट है, तो डेफिनेटली उसकी मटेरियलिटी है. द फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर वो इंटीग्रिटी को ही फुलफिल नहीं कर रहा, यहाँ पर उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को उस कंपनी में एक ही पोजीशन रखनी चाहिए, या तो एज ए इन्वेस्टर या एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अगर वो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहता है तो उसको अपना अपना वो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए. अगर वो एज ए इन्वेस्टर रहना चाहता है तो उसको अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर की पोजीशन से रिजाइन दे देना चाहिए, अपने आप को लीव कर देना चाहिए, ताकि उसके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स, लाइक उसको अगर कोड ऑफ एथिक्स को लगी रही है, डेफिनेटली वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और जिस दिन इंस्टीट्यूट को ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो डेफिनेटली वो 5 साल के लिए बाहर हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्टिविटी सेक्शन 120. ये कहता था शुड नॉट बी बायस. आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो सर्टिफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शुड नॉट बी बायस विद द इंप्रेशन ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस, क्वालिफाइड टू क्लीन. यहाँ पर क्या है कि अगर मेरा किसी कंपनी की बैलेंस शीट में उसमें कुछ मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, या मेरा उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ मेरा कोई फैमिली रिलेशन है, कहीं ना कहीं मेरा उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो मेरा जो डिसीजन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो बायस हो रहा है, मेरे ऑब्जेक्टिव वहां पर फुलफिल नहीं हो रहे, वहाँ ऑब्जेक्टिव मेरे कंप्लीट नहीं हो रहे. तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, समटाइम आई लाइक instead of qualified report I am giving clean report, instead of materiality giving materiality, disclosure of materiality I am not giving, I am immateriality में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो कहीं ना कहीं मेरे ऑब्जेक्टिव बायस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है ही. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर. अपडेशन, द रिक्वायर्ड अपडेटेड नॉलेज. आज भी अगर कोड ऑफ एथिक्स में जाकर देखता हूँ, जितने भी ये हमारे मिसकंडक्ट के जो केसेस हुए हैं, वहां पर जाकर मैं उसकी लिस्ट देखता हूँ, लिस्ट होता प्रोफेशनल मिसकंडक्ट केसेस, तो मैंने जनरली वहां पर यही देखा है, या तो उस लिस्ट में न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर बहुत पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट है.
बहुत पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट में सभी नहीं कहता कि सभी वैसे हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं करते। और जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट्स के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, कहीं ना कहीं वो कोड ऑफ एथिक्स को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोड ऑफ एथिक्स में वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंस जाते हैं। सो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है सभी को ही, सभी मेंबर्स को, कि कोड ऑफ एथिक्स को भी उतना ही फॉलो करें जितना हम इनकम टैक्स को फॉलो करते हैं, जीएसटी को करते हैं। क्योंकि अगर आपकी डिग्री आपके हाथ में नहीं रहेगी, आपके अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया और आपकी डिग्री इंस्टीट्यूट ने वापस ले ली 5 साल के लिए, सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है काम करने के लिए। सो दिस इज द ओनली सिंगल वे जो हमारे पास इंस्टीट्यूट ने डिग्री दी है, एंड वी आर वर्किंग एज ए प्रोफेशनल इन द मार्केट, whether maybe in the as a practicing chartered accountant or we are working in the industry. So it's our duty to maintain this code of ethics, right? So required updated knowledge and skill to perform his professional duties. Very, very important. Confidentiality. Must maintain the required level of confidentiality of the client information. कई बार होता है कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपस में बैठ के जब बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट की बात करते हैं, और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ प्रोफेशनल ऐसे भी हैं मार्केट में जो क्लाइंट का नाम भी ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, पब्लिकली भी बोल देते हैं। अगेन इट इज ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल का ये जो फोर्थ वन है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हमें अलाउ नहीं करता कि हम अपने क्लाइंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अपने क्लाइंट की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे क्लाइंट से रिलेटेड है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज पब्लिकली। हाँ, इसमें एक चीज और है जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लास्ट में आगे जाके देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी की सेकंड लाइन के लास्ट में, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज whenever it is demanded by the specific authority during any proceedings under the applicable law. अगर किसी डिपार्टमेंट ने, लाइक इनकम टैक्स में उसका कोई केस चल रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटी आपसे पूछती है कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताएं, देन इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू मेंशन दैट सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ योर क्लाइंट। क्योंकि इस केस में अगर डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है, किसी लॉ के केस में कोई कोर्ट आपसे अगर इंफॉर्मेशन मांग रही है, इस केस में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, बट अदर देन दिस, अगर आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे क्लाइंट के साथ, किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ पब्लिकली या वैसे डिस्क्लोज करते हैं, या आफ्टर गेटिंग सम मनी, सम मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो दैट इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। Last one, professional behavior. Complying with the relevant rule, regulation, and the law, and he should avoid to do any action which down the value and the image of the profession. कहीं पर भी अगर आप किसी के प्रोफेशन को, उसकी वैल्यू को, उसकी इमेज को डाउन करते हैं, तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर आप देखेंगे हमारे फर्स्ट शेड्यूल का फोर्थ पार्ट, सेकंड शेड्यूल का थर्ड पार्ट, फर्स्ट शेड्यूल में लेस देन 6 मंथ, और सेकंड शेड्यूल के थर्ड पार्ट में, फर्स्ट शेड्यूल के फोर्थ पार्ट में लेस देन 6 मंथ, और सेकंड शेड्यूल के थर्ड पार्ट में मोर देन 6 मंथ के इम्प्रिजनमेंट है। कहीं ना कहीं अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर आप कोई क्राइम, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी आप करते हैं, तो वो प्रोफेशनल बिहेवियर में कवर नहीं होता। सो लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेते हैं। ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द थ्रेट to these fundamental principles and applying safeguards to ensure that the principles are not compromised. So while doing this audit part, while doing this professional work, we have to maintain all the fundamental principles. This is our duty. Now old code of ethics मैंने पहले बता दिया, ये ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। इसमें सिर्फ ये नीचे वाला जो पैरा, इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स तो जो हमारी है ही है, वो तो हमें मेंटेन करनी है। We have to maintain schedule first, we have to maintain schedule second, we have to maintain part A fundamental principle, and apart from this, these two schedules along with the decision of the court on the professional misconduct, decision directions, guidelines, statements, clarification, even announcement तो इसमें mention नहीं है, clarification and also interpretation of the council on the various clauses of these two schedules constitute the code of ethics for the accountancy professional. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो दोनों शेड्यूल हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूट की कोई गाइडलाइन, इंस्टीट्यूट की कोई क्लैरिफिकेशन, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट, कोई डिसीजन, कोई कोर्ट का डिसीजन, ये सभी के सभी हमें ओवरऑल मेंटेन करनी है। ये सभी के सभी क्या है? ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स
सेकंड शेड्यूल में ये है, सेम लाइन है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी। फोल्ड की बात करते हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में टोटल हमारे पास 12 क्लॉज है। 12 क्लॉज सभी ने पढ़े हुए हैं, पहले मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मुझे जो बात करनी है वो न्यू कोड ऑफ एथिक्स की करनी है। सो आगे चलते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज बीच में आप मुझे इंटरप्ट कर दें, बीच में आप मुझे रोक दें, मैं वहां पर उस क्लॉज को कवर कर लूंगा इफ यू नीड एनीथिंग, राइट। सो सेकंड पार्ट में 2 क्लॉज, थर्ड पार्ट में 3 क्लॉज एंड द फोर्थ पार्ट में 1 क्लॉज। लास्ट में आप देखेंगे ना तो क्या लिखा हो, बिकम गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 6 मंथ्स, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया। एंड द सेकंड वन इज ब्रिंग disrepute the प्रोफेशनल इमेज, जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर वो शेयरिंग वाला वो एक बटन मेरे सामने आया हुआ है, सो आई कैन नॉट रीड दैट मैटर। आगे चलते हैं। सेकंड शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो अगेन इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट हैं। इसमें 10 क्लॉज हैं पार्ट 1 में, और सेकंड तो ये ज्यादा था जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में ये वो देखा, ठीक है। इस तरह आपके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए उसमें मैंने मेंशन किया। अब बात करते हैं न्यू कोड ऑफ एथिक्स की बात। यहाँ पे स्लाइड है जो ओवरऑल ये बताएंगे न्यू कोड ऑफ एथिक्स क्या है। तो ओवरऑल कोड ऑफ एथिक्स 19 आपने जो फर्स्ट तो पहले लिखा हो जुलाई है, पार्ट 1 Part 1 combine fundamental and conceptual frame। तो आप बड़े सिंपल में समझें कि जो यानी कि टोटल पार्ट सिर्फ फंड प्रिंसिपल कंसेप्ट फ्रेमवर्क सेक्शन 100 से लेकर 199। I think I'm getting some disturbance. Sorry. I'm getting some disturbance. Yeah, Yes, it's now, fine, sir. now okay, now okay. I'm audible now? Yeah, my voice is okay. मुझे बता दें अगर बीच में कोई दिक्कत हो। जो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करता है, सेक्शन 100 से लेकर 199, इसको आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ें। और नीचे लिखने तो नीचे लिखो ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट वेदर इन एक्टिव सर्विस, ये नहीं, ये दोनों प्रोफेशन करते हैं, वेदर यू आर ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए सर्विस पर्सन। इसका जिसको प्रैक्टिस वालों के कि जो पर्सन में है as a practicing chartered as a service, not in the service of the industry, like he is not working somewhere, he is not a practicing chartered accountant, उसके ऊपर ये नहीं लगेंगे। यानी कि ऐसे मेंबर जो मेंबर इन जर्नल ऑफ आईसीआई हैं, जिन्होंने सिर्फ मेंबरशिप ले रखी है, ना वो प्रैक्टिस करते हैं ना वो जॉब में, either they are retired or they left the company and now they are free, so उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। पार्ट टू टॉक अबाउट प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड सर्विस, वालों इसमें 200 से लेकर 99 एप्लीकेशन। जो नीचे मैंने येलो लाइन कर दी है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसमें क्या कहता है, also in public place when performing professional activity pursuant to their relationship with the firm। अभी पार्ट 1 हमने पढ़ा तो उसमें उसने बोला कि प्रैक्टिसिंग और सर्विस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। पार्ट 2 जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ सर्विस वालों के ऊपर।
येलो लाइन में वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, they are not working in the industry, they are not working with the industry, they are working with the chartered firm. The chartered firm जो practice में है, उनके साथ वो work कर रहे हैं as a assistant, as an employee of that chartered firm. So ये उसमें ये practicing firm के as काम कर रहे हैं. So now part 3, professional accountant in public practice. ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वालों के लिए पार्ट 3 अलग से डिफाइन कर प्रोफेशनल अटेंडेंट प्रैक्टिस. सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऐसा भी हो जाता है कि एक चार्टर्ड अकाउंट है, उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है, फिर वो 6 महीने का 8 महीने उसको कंप्लायंस करने के लिए उसके ऊपर ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रैक्टिस वाला पार्ट 3 एप्लीकेबल है. अगर उसने अपना सीओपी सरेंडर नहीं किया और विदाउट सरेंडरिंग हिज सीओपी टू द इंस्टीट्यूट, वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में चला जाता है. तो ये पार्ट 3 उसके साथ कब तक एप्लीकेबल रहेगा, जब तक वो अपना सीओपी सरेंडर नहीं करता. हालांकि इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना जरूरी है. इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रैक्टिस and you want to now you want to stop your practice, but without surrendering your COP, if you want to join the industry and you are not informing to the ICI that now I joined this company, I'm not practicing chartered accountant, I'm in the service now, then you have to surrender that COP. अगर आप वो भी नहीं करते, again it's a professional misconduct because you are giving a wrong information to the institute कि सर मैं तो प्रैक्टिस में हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपने अपना सर्टिफिकेट अभी सरेंडर नहीं, उसमें सरेंडर नहीं किया, तो आपको वो सरेंडर भी करना. Now part 4, part 4 is very important. Independence standard. ये applicable, इसमें दो पार्ट बनाए हैं, 4A and the 4B. Independence for the audit and the review engagement, specifically for the audit and review engagement. And the second one is independence for the assurance engagement other than audit and review engagement. So जो पहले वाला है वो सिर्फ ऑडिट एंड रिव्यू के ऊपर लगेगा, सेक्शन 400 से 899, और जो दूसरे वाला है वो लगेगा सिर्फ इंश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, वो लगेगा 900 से लेके 999 तक सेक्शन. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्शन 100 से लेके 999 तक के जो सेक्शंस हैं ये सारे के सारे एप्लीकेबल हैं, बट सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट देन पार्ट 3 लगेगा, पार्ट 4 लगेगा. इफ यू आर इन द जॉब देन पार्ट 2 लगेगा. बट अगर आप प्रैक्टिस या सर्विस में हैं तो पार्ट 1 तो दोनों पे ही लगेगा. अगर आप जनरल मेंबर ऑफ आईसीआई हैं, नॉट इन सर्विस नॉट इन प्रैक्टिस, तो पार्ट 1 नहीं लगेगा. राइट. उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ सकती हैं. अब न्यू कोड ऑफ एथिक्स में इन्होंने क्या कर दिया, आईसीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में मैंने लिखी है, ग्लॉसरी. इन्होंने कुछ ऐसे टेक्निकल्स और प्रोफेशनल टर्म्स की ग्लॉसरी दे रखी है जो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं. राइट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में यार अगर हम किसी प्रोफेशनल टर्म्स को हम नहीं समझ पा रहे, उसका मीनिंग क्या है, या उसको हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंस में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, वहाँ पे वो प्रोफेशनल टर्म यूज करना चाहते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू, सो आपको उस ग्लोसरी को रेफर करना है और वो प्रोफेशनल टर्म वहां से लेकर उसके मीनिंग के साथ उसको अप्लाई करना है अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस. अब देखते हैं ये न्यू कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली बात क्या करती है. पहले तारा पढ़ते हैं. न्यू कोड कंटेन सेक्शन विच एड्रेस स्पेसिफिक टॉपिक्स. पहले वाली जो कोड ऑफ एथिक्स थी उसको क्लॉज में था. न्यू कोड ऑफ एथिक्स में इसको सेक्शन वाइज कर दिया गया, स्पेसिफिक टॉपिक वाइज कर दिया गया. Some sections contain subsections dealing with the specific aspects of those topics. Each section of the code is structured where appropriate as follows. Appropriate as follows. इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? इंट्रोडक्शन में जो मैंने येलो किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसी को पढ़ते हैं. द रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन मटेरियल. पूरा पढ़ेंगे तो भी मतलब वहीं आएगा. रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन मटेरियल जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल थे उसमें हमारी कुछ रिक्वायरमेंट थी, कुछ एप्लीकेशन थी पुराने वाली. यहाँ पर इसको उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल को कन्वर्ट करके इन्होंने कर दिया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है रिक्वायरमेंट, जो इंस्टीट्यूट ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि हमें
एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एज ए प्रोफेशनल काम करते हुए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कौन कौन सी चीजें कंप्लीट करनी है। एंड एप्लीकेशन मटेरियल, एप्लीकेशन मटेरियल हमें ये गाइड करता है कि किसी भी चीज का ऑडिट करते हुए हमें कौन कौन से एरिया को फॉलो करना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, किस वे में उसको ऑडिट को कंप्लीट करना है, रिपोर्ट करते समय हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सो एप्लीकेशन मटेरियल आपकी हेल्प के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, while auditing, while giving report on any particular aspect, on any particular जो भी कंपनी के जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे स्टॉक ऑडिट की बात करूं मैं, इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन की बात करूं, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की बात करूं, स्टार ऑडिट की बात करूं और रेवेन्यू ऑडिट की बात करूं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर एप्लीकेशन मटेरियल आपको हेल्प करेगा तो अंडरस्टैंड कि मुझे इस चीज को चेक कैसे करना है, ऑडिट कैसे करना है, वाउच कैसे करना है। और रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट में ये बताता है रिक्वायरमेंट में कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, विच इज मैंडेटरी, यू हैव टू मेंटेन रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। तो रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है जो आपको कंप्लीट करनी है। उसमें से कुछ ऑब्लिगेशन जर्नल है, कुछ स्पेसिफिक है, और ये सारी की सारी जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है। एंड विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर एड्रेस, application material provide context, explanation, suggestion for action or matter to consider, right? So other guidance to assist in complying with the requirement. आपने जो भी कोड ऑफ एथिक्स में जो एप्लीकेशन मटेरियल पार्ट है उसकी हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि फॉर एक्शन और द मैटर टू बी कंसिडर्ड, टू कंसिडर, लाइक ऑडिट करते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, क्या एक्शन लेने, कौन से मैटर को कंसिडर करना है। बट रिक्वायरमेंट में क्या है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, एंड दैट ऑब्लिगेशन मे बी जर्नल और मे बी स्पेसिफिक, एंड वी हैव टू एड्रेस। The code required professional accountant to comply with the fundamental principle of the ethics. येलो वाला पढ़ते हैं, अप्लाई द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, थ्रेट। पहला है आइडेंटिफाई थ्रेट, दूसरा इवैल्यूएट थ्रेट और तीसरा एड्रेस थ्रेट टू द कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। आज अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जाता हूँ और मेरे साथ मेरा आर्टिकल जाता है कि सर मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं भी ऑडिट सीख लूंगा, मैं उसे साथ लेके जाता हूँ और वो ऑडिट के दौरान कोई ऐसी फाइंडिंग्स निकालता है जो कहता है कि सर ये देखिए सर यहाँ पर इस कंपनी में ये सर इस अकाउंट में ये पैसा डेबिट किया हुआ, ये घपला है सर, ये फ्रॉड है, ये वो है, और मैं उस आइटम को देखता हूँ तो सब पहली सबसे ड्यूटी, द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज टू आइडेंटिफाई, कि वहां पर वो चीज आइडेंटिफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दैट वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अगर उस कंपनी में इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है तो ये उस इन्वेस्टर के लिए थ्रेट का काम करता है। अगर मैंने इसको प्रॉपरली इस थ्रेट को इवैल्यूएट नहीं किया तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, देन आई कैन नॉट, आई एम वर्किंग एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, if we don't evaluate the threat, we cannot understand the materiality of that, the findings. तीसरा है एड्रेस द थ्रेट, जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उन हर फाइंडिंग्स को आपने एड्रेस करना है टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल में इंटीग्रिटी है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, उसमें प्रोफेशनल है, हर चीज उसमें आपको एक एक करके अप्लाई करनी है। और अप्लाई थ्री लेवल पे करनी है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई, सेकंड है इवैल्यूएट एंड द थर्ड वन इज एड्रेस। नाउ नेक्स्ट पैरा में येलो वाला पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंडीशंस, policies and the procedure established by the professional, legislation, regulation, the firm or the employee organization might impact the identification of threat. आज मैं ऑडिट करने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में कोड ऑफ एथिक्स मेरे माइंड में रहनी चाहिए, मेरे माइंड में इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस रहने चाहिए, मेरे माइंड में जीएसटी की कंप्लायंसेस रहने चाहिए, मेरे माइंड में जो मेरी पार्टी है, जो मेरा एम्प्लॉयर है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा क्लाइंट है, उसने जो मुझे डायरेक्शन दिए हैं कि आपको ऑडिट करते समय इन चीजों का ध्यान रखना, ये चीजें फाइंड आउट करनी है, तो मुझे उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे अपना ऑडिट पार्ट कंप्लीट करना है एंड टू आइडेंटिफाई दैट थ्रेट। And those conditions, policy and the procedure might also be the relevant factor in the professional accountant evaluation of whether the threat is at an acceptable level. अब acceptable level क्या है? मान लो मैंने कोई ऑडिट करते समय कोई फाइंडिंग की और फाइंडिंग करने के बाद मैं उसको आइडेंटिफाई किया, फिर उसको इवेल्युएट किया तो इवेल्युएशन में मैं ये देख रहा हूँ कि क्या इसकी मटेरियलिटी है, क्या अगर मैं इसको रिपोर्ट नहीं करता तो क्या इस नॉन रिपोर्टिंग ऑफ दिस फैक्टर की वजह से क्या मेरे
इस कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उनके कहीं जजमेंट पर, उनके कहीं डिसीजन में इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो डेफिनेटली मुझे उसको रिपोर्ट करना है। और कहीं ऐसा है कि मैं उसे इग्नोर करना चाहता हूँ, उसको छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसको छोड़ सकता हूँ? अगर मैं उसको छोड़ सकता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो इमटेरियल है। अगर वो इमटेरियल है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो जो मेरी फाइंडिंग है विच इज इमटेरियल, so that is at the acceptable level. अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, देन नेक्स्ट क्या कहता है? थ्रेट्स आर नॉट एट एन एक्सेप्टेबल लेवल, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड। अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं है तो मुझे अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लगाने, अप्लाई करने हैं। लास्ट वाले में क्या लिखा है? सेफगार्ड और एक्शन और एक्शंस इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन दैट द अकाउंटेंट टेक्स that effectively reduce threat to the acceptable level. अगर मेरी कोई फाइंडिंग आई और उसमें मटेरियलिटी है, so I would say that is not my that finding is not at an acceptable level. या मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद मैं उसके कुछ एविडेंस लूंगा और उसके ऊपर फिर वर्किंग करूंगा, फिर उसकी वैल्यूएशन करूंगा। और अगर like reducing that threat at the level after वो risk reduce करके guidance और उसकी हेल्प से नो उसके reduce कर देता हूँ एक्सेप्टेबल लेवल में डाल देना है। अगर मेरा वो एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं है, मुझे लगता है कि रिस्क है, पब्लिक इंटरेस्ट करना पड़ सकता है। यू नो ऑडिट जो लेना है उसमें उसको मैनेजमेंट से बात करना है, नॉट एट एक्सेप्टेबल नहीं कर, तो मैं इसका डिस्क्लोजर कर रहा हूँ, उसको क्वालिफाई कर रहा हूँ क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मीन्स हमें वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू बी इंडिपेंडेंट, जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में बताया गया है, परफॉर्मिंग ऑडिट टू एंडर एंगेजमेंट identify value address that compliance with the fundamental principle already we cover पहले हम पढ़ चुके हैं, cover हो चुका है। requirement है application method में कहते हैं requirement application में to be read and apply with the objective of complying with the fundamental principle when performing audit, review and other assurance engagement being independent. यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज कनिका जी, if you have any question please. Sir, no question now. Okay, very good. इसका मतलब अभी तक सब समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ तक ये इसी के ऊपर ही कॉम्पिटिक्स बता रहे हो, everything is clear. रिक्वायरमेंट में हम बात करते हैं, रिक्वायरमेंट में जहाँ हमें वर्ड की इंपॉर्टेंस को समझना है। पहला होता है इसमें inclusion application on a accountant to comply with specific जिस रिक्वायरमेंट में, यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम में या किसी स्पेसिफिक फैक्टर में अगर रिक्वायरमेंट को उतना पढ़ते हैं और वहां पर में तो वहां पर ऑब्लिगेशन है और हमें उसको वर्किंग करनी है, हम उसके लिए उसे ध्यान में रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते चल वाले को। बट द कोड प्रोवाइड्स स्पेसिफिक एक्सेप्शंस टू द रिक्वायरमेंट। In such a situation, provision is designed with the letter R. जहाँ पर exception है वहाँ पर आपको conditional की जगह R मिलेगा, may और conditional यहाँ पर शर्त नहीं होगा, या तो वहाँ पर R होगा, exception होगी या may होगा, यहाँ पर कोई conditional wording होगी, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि हमें पता लगे अगर इस पर्टिकुलर थ्रेड को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या वो हमारा डिस्क्लोजर वाला, वो हमारी मेन ऑब्लिगेशन, तो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है, स्पेशल ऑब्लिगेशन है
और होगा तो जनरल ऑब्लिगेशन हो सकती है। थर्ड पैराग्राफ, word may be used में take particular action or circumstances, like including an exception to the requirement, it is not used to denote possibility. So may means the possibility बताता है कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। लास्ट वाले में word might is used in the code, it denotes the possibility of matter arising, maybe arise, maybe not, even occurring, or the course of action being taken. ये हो भी सकता है, it might be yes or no. अगर हो जाता है then what will happen, the course of action being taken. अगर आप रिपोर्टिंग करते समय आपको डाउट है कि अगर ऐसा हो भी सकता है या नहीं, फाइंडिंग आपने कुछ किया, ये मटेरियल हो भी सकता है, इमटेरियल भी हो सकता है, बट अगर ये मटेरियल हुआ माइट बी मटेरियलिटी इज देयर। सो अगर आपको लगता है कि यस ये मटेरियलिटी हो सकती है बट यू आर नॉट एबल टू like give you judgment on that, so my humble request to you कि प्लीज अगर आपको जहां पर डाउट हो वहां पर उसको मटेरियलिटी अज्यूम करके उसका डिस्क्लोजर दे दो, सो दैट आप कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं पर भी गिल्टी ना हो पाए फ्यूचर में। सो इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना है, शैल है, आर है, मे है, कंडीशनल वर्डिंग है, मे है, माइट है। तो शैल के केस में तो ऑब्लिगेशन स्पेसिफिक है। आगे चलो एप्लीकेशन मटेरियल, मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया, एक बार मुझे पढ़ना ही है। इन एडिशन the code contain application material that provide context relevant to the proper understanding of the code. The application material is intended to help the professional accountant to understand how to apply the conceptual framework. तो मैंने आपको पहले बोला कि एप्लीकेशन मटेरियल में इंस्टीट्यूट हमें ये बताता है कि आपको कोड में काम करते हुए उसके कंडीशंस को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को कैसे अप्लाई करना है। So the particular set of circumstances to understand and comply with the specific requirement. Professional accounting responsibility is not exclusively to satisfy the need of the individual client. ये हम fundamental principle में भी ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हमारा सिर्फ रिपोर्ट नहीं करना है, अपने में काम करना है। बात नहीं लगा professional accountant to understand how to apply the conceptual framework to a particular set of circumstances and to understand and comply with the specific requirement. Last में क्या लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर रिक्वायर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। जो हमने पहले भी बात की कि जितने भी अनाउंसमेंट सर्कुलर आएंगे, टू बी अवेयर ऑफ डिफरेंस इन लोकल रेगुलेशन फ्रॉम द प्रोविजन एज टू सेट आउट इन द कोड एंड मोस्ट and just with this the कोर्ट की जो जजमेंट आ रही है, वेदर सुप्रीम कोर्ट, वेदर हाई कोर्ट और डिसिप्लिनरी कमेटी के जो डिसीजन आ रहे हैं वो, उसके अलावा इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट, उसके अलावा क्लैरिफिकेशन, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसे डिसीजन आ रहे हैं, वो सभी के सभी कोड ऑफ कंडक्ट पास हैं, तो हमें सभी के सभी मेंटेन करना है। सेक्शन 1 फंडामेंटल बातों में रिपीट नहीं करूंगा, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी मैं पहले बता चुका हूं ऑलरेडी। यहाँ पर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में to gain professional knowledge and skill at level to ensure that the client or the employee organization is competent based on the current technical professional standards and the legislation. होता क्या है, आज ऊपर की कंपनी जो सर्वर है ना में बात करें तो जिसके ऊपर इंडियन एप्लीकेबल है, मैंने आपको मालूम पड़ेगी और मैं ऐसी कंपनी को टाइम एप्लीकेशन apply that into so professional standard मुझे इतना कहीं sometimes अपडेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना है, वो मुझे करना है, मुझे नॉलेज नहीं है एरियाज कैसे अप्लाई होते हैं, किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या
quality of auditor, like उनकी पहचान disclosure देने हैं, अगर वो मुझे पता नहीं है, if I go plan for 10 years and I'm going to sign the balance sheet this company के ऊपर, जिस कंपनी की टर्नओवर जिसकी अप्लाई ऑलरेडी प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर है, जिसके ऊपर इंडिया की लायबिलिटी है डिस्क्लोजर देने की, अप्लाई करने की, and I'm not able to, I don't know the India is smart, so it's a professional misconduct होगी, तो मुझे प्रोफेशनली अपने आप को अपडेट करना है, competence, professional competence में काम करना है. Confidentiality already covered, the professional behavior, compliance law and regulation already we have discussed. One to जो conceptual framework, जितने भी आप सेक्शन पढ़ेंगे, जितने भी आप केस पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स में 2019 में, हर केस के ऊपर हमेशा हर बार 120 talk about the conceptual framework. Yellow में क्या लिखा है? Conceptual framework to assist the accountant in complying with the people and meeting their responsibilities to the applicant. ये हमेशा आपको मिलेगा. Conceptual framework specify क्या करता है? Identify threats, evaluate the threats and address the threats. और लास्ट में देखेंगे क्या लिखा है? To an acceptable level. यानी कि अगर आपको कोई ऐसा थ्रेट मिला है, अगर आपको कोई ऐसी फाइंडिंग है, उसको आपको क्या करना है? पहले आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करने के बाद देन उसको एवेल्युएट करना है, उसकी मटीरियलिटी को पहचानना है. मटीरियलिटी पहचानने के बाद देन उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आना है. अगर आप उसको एक्सेप्टेबल लेवल पर लेके आ जाते हैं, then there is no need to give the disclosure in your audit report or in the notes and account. But अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं आता, आपने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया in the materiality in the audit report or in the notes and account. Right. When applying the conceptual framework, सबसे exercise professional judgment. कंपनी के बारे में कुछ नया क्लाइंट आपके फोन से कौन सी आपकी देखकर मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाता हूँ, एप्लीकेबल. तो वो मेरी प्रोफेशनल जजमेंट है, और प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ से लगती है? आपको हमारी प्रोफेशनल जजमेंट इंक्रीज होती जाती है, एनहांस होती जाती है. राइट. सो रिमेन अलर्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. अगर मान लो मैंने उसके बारे में कोई माइंड में फाइंडिंग आ गई, कुछ डाउट गया, और वो डाउट को सोच रहा हूँ उसको क्वालिफाई नहीं कर. So this is not the actually role of the practicing chartered accountant, the role of the auditor. उसे रिमेन अलर्ट रहना है इंफॉर्मेशन के लिए. हो सकता है कि जो डाउट आपके माइंड में आया, और अगर आप अलर्ट रहते हैं, आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हो सकता है वो आपका डाउट क्लियर हो जाए. और डाउट क्लियर हो जाए तो आपका वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जब आप लगाएंगे, तो वो जो आपकी जो थ्रेट आपने जो फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाई किया था, वो एक्सेप्टेबल लेवल पे पहुंच गया. बट अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, आप एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं पहुंचे, देन आपकी प्रोफेशनल जजमेंट आपको बताएगी, आपको हेल्प करेगी कि यस, इसको डिस्क्लोजर का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि दिस इज बेसिकली रिलेट टू द मटीरियलिटी और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना. डेफिनेटली इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द डिस्क्लोजर. टू यूज द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट डिस्क्राइब. जितना भी रीजनेबल हो, जितना भी हम ऑडिट करते हैं, हम देखते हैं कंप्लायंस देखते हैं. कंप्लायंस की बात करें तो हम पीडीएफ देखते हैं, जीएसटी लायबिलिटी देखते हैं, एक्साइज देखते हैं, कस्टम देखते हैं, बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज हम देखते हैं. तो बेसिकली कहीं पर तो जहाँ पर हमें नॉलेज है, वहाँ पे तो रीजनेबल, या फिर थर्ड पार्टी की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी हमें फुलफिल करना. Exercise of the professional judgment. The professional judgment involves the application of the relevant training. अब ये वर्ड आ गया ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे सीए प्रोफेशन में भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, जो सीए तो स्टार्ट कर लेते हैं, और सीए स्टार्ट करते ही कई बार वो एक्चुअल ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनते, और वो कहीं ना कहीं डमी आर्टिकलशिप की तरफ चले जाते हैं. तो डमी आर्टिकलशिप की तरफ जाने के बाद क्या होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन जाते हैं, बट उनके माइंड में वो प्रोफेशनल जजमेंट वाला वो लेवल नहीं आता. अगर वो ये बन जाते हैं, और ये बनने के बाद immediately they want to start, even they started the practice, तो प्रोफेशनल जजमेंट ना होने की वजह से क्या होगा, अगर वो फ्यूचर में कोई ऐसी बैलेंस शीट साइन करते हैं जिसमें
उनका एक्सपीरियंस रहा ही नहीं क्योंकि उनका ट्रेनिंग पार्ट अलग कर रहा है। तो वहां पर उनके साथ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो द प्रोफेशनल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस commensurate with the facts and the circumstances, including the nature and the scope of the particular professional activity and the interest and relationship involved. So ultimately, the professional training offers training the competencies that the individual कुछ ऐसे चीजें हैं आपको मेंटेन और प्रोफेशनल जजमेंट को obtain like the understanding total mind perspective, ये सब चीजें आप कंसीडर कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। potentially relevant information might be missing from the fact circumstances known to the accountant। कई बार ऐसा होता है कि ऑडिट करते समय कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें पता होता है, जैसे हमारे आर्टिकल का भी ऑडिट करते हैं, कहते हैं सर इन्होंने सर वो एक एसेट खरीदी है, हम कहते हैं हाँ हमें पता है क्योंकि हमारी बात हो गई थी, उन्होंने खरीदी थी, उन्होंने मशीन खरीदी थी, कोई वो लोन भी लोन भी जब उसका हुआ था तो उसने हमसे पूछा था, हमसे डेटा मांगा था, कोई बड़ी बड़ी potentially relevant information might be missing from the fact। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऑडिट करते समय वो हमें बोलता है कि सर वो ऐसे यार इसने तो बताया नहीं था, क्लाइंट ने कभी ये बताया नहीं कि उसने कोई ऐसे खरीदी है। तो आपको इसको बड़े ध्यान में रखना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है तो उसको अकाउंट फॉर करना, उसको अपना ऑडिट के टाइम पे इस्तेमाल करना, उसको यूटिलाइज करना है। या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी नॉलेज में नहीं है तो उसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है। Inconsistency between the known facts and the circumstances and the accountant expectation। कई बार ऐसा होता है कि नॉन फैक्ट्स कुछ और होते हैं और हम कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहां पर इनकंसिस्टेंसी होती है, उसको भी बड़े ध्यान से रखना है, उसको मेंटेन करना है, उसको भी ध्यान रखना है रिपोर्टिंग के टाइम पे, क्योंकि इसमें से मेजर पार्ट रिपोर्टिंग का बनता है। और उसमें हमें अगेन ये देखना है कि क्या उसमें मटेरियलिटी है, क्या वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है, अगर है तो विदाउट डिस्क्लोजर, अगर एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, मटेरियलिटी है, देन डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। अकाउंटेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस आर सफिशिएंट टू रीच अ कंक्लूजन। किसी भी ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए, उसको कंक्लूड करने के लिए उसका एक्सपर्टाइज, अकाउंटेंट का एक्सपर्टाइज होना, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। उसके बिना वो ऑडिट है वो कंक्लूड नहीं होता। कई बार ऐसा देखा गया कुछ जगह पे ऑडिट स्टार्ट तो हो जाते हैं, एक टीम जाके ऑडिट स्टार्ट कर लेती है, तो उसको कंक्लूड करने के लिए दूसरी टीम को भेजा जाता है, और जो दूसरी टीम होती है वो एक्सपर्टाइज होती है, उसके पास एक्सपीरियंस होते हैं, उसका सफिशिएंट नॉलेज होती है, उनका एक्सपीरियंस पहले वाली टीम से ज्यादा वास्ट होता है, तभी वो कंक्लूड कर पाती है। बट पहले वाली टीम के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, बट उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया ऑडिट, बट कंक्लूड नहीं कर पाए कि इसको कंक्लूड कैसे करना है। So need to consult with the other with the relevant expertise and experience। कई बार हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा है, किसी जैसी मुझे मिल जाती है चीजें जो मेरी नॉलेज में नहीं है, ना मैंने कभी अपने आर्टिकल सीक्रेट में कभी सीखी, ना मैंने कभी देखी, ना मैंने कभी अपनी पुरानी प्रैक्टिस के पार्ट में कभी मैंने उसको देखा। तो समटाइम वी हैव टू take the knowledge, like use the knowledge of the other person, take the guidance of the other practicing chartered accountant, take the the view of the other practicing chartered accountant, the experience holder. So that is very very important to reach to the acceptable level. Information provide and reasonable basis on which the reach the conclusion already discussed. Accountant own preconception or bias might be affecting the accountant exercise of the profession। कई बार कहते हैं ना कि जिसने जो काम किया है उसको अपनी गलती नहीं दिखती, या जिसने जो ऑडिट किया है उसको गलती नहीं दिखती। मुझे लगता है कि एक पर्सन को गलती नहीं दिखती, बट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिख जाती है, दूसरे ऑडिटर। तो कई बार ऐसा होता है, दूसरों की गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइट बी अदर रीजनेबल कंक्लूजन दैट कुड बी रीच फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई थ्रेट। सबसे पहले उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करना। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट शेल, ध्यान से सर, शेल हो गया सर, आइडेंटिफाई थ्रेट टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। अगर आपने किसी चीज को ऑडिट किया और उसमें कुछ थ्रेट था, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप आइडेंटिफाई थ्रेट मींस द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का पहला पार्ट, आइडेंटिफाई थ्रेट, आपने उससे कंप्लाई नहीं किया। दूसरा, the accountant shall evaluate whether such threat is at an acceptable level। अगर एक्सेप्टेबल लेवल है तो मैंने आपको पहले बोला विदाउट डिस्क्लोजर। अगर वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा, उसका रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं जा रहा, देन
treated as a materiality and we have to give the disclosure. Acceptable level. Professional accountant using the reasonable and the informed third party test would likely conclude that the accountant comply with the fundamental. कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ फाइंडिंग होती है, हमें लगता है रेलिवेंट है, बट अगर हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो क्लाइंट उसमें हमें अपनी और इंफॉर्मेशन देकर हमें वो जस्टिफाई कर देता है कि सर दिस इज नॉट अ मटेरियल, इट इज दिस इज इमटेरियल, तो ये डिस्क्लोजर में नहीं जाना चाहिए, डिस्क्लोजर में नहीं जाएगा। तो अगर हम वो उसकी इंफॉर्मेशन लेकर, अगर एविडेंस लेकर, अगर उसकी बात सुनकर, अंडरस्टैंड करके, प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करके अगर हम एक्सेप्टेबल लेवल पे पहुंच जाते हैं, देन without disclosure. Addressing threat. The accountant shall address the threat by eliminating them or reducing them to an acceptable level. यानी कि अगर कोई भी थ्रेट ऐसा जो रिस्की लेवल पर है, अगर हम उसको और प्रॉपर्ली एड्रेस करें, उसके ऊपर और काम करें, और एविडेंस, इंफॉर्मेशन, उसको स्पेसिफिकली उसी थ्रेट को ही हम लुक आफ्टर करते हैं, तो फ्यूचर में डेफिनेटली हम उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे ला सकते हैं बिफोर कंक्लूडिंग आवर ऑडिट। चार थ्रेड चाहिए, इसमें कुछ ऐसे थ्रेड हैं टाइप ऑफ थ्रेड में, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से चार पार्ट थे, यहाँ पर थ्रेड है और ये पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी फर्स्ट वन इज सेल्फ इंटरेस्ट, जो मैंने पहले बताया, अभी थोड़ा डिस्कस में बात करते हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फैमिलियरिटी थ्रेड और इंटिमिडेशन थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड मैंने आपको स्टार्टिंग में केस बताया था जहां पर मैंने जीएसटी ऑडिट किया था लास्ट टाइम, तो उस चार्टर्ड फर्म का जो मालिक था, उस चार्टर्ड फर्म का जो प्रिंसिपल था, तो उसने अपने एक्चुअल के अकाउंट से ही 50 लाख रुपए कंपनी को दे रखे थे एज अ लोन। तो कहीं ना कहीं कोड ऑफ एथिक्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन, कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्टिंग को बायस करता है, ऑब्जेक्टिविटी को डिफीट करता है, इंटीग्रिटी को इंटीग्रिटी उसमें नहीं दिखती। तो वहां पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या लिखा है येलो लाइन में, द फाइनेंशियल or the other interest will inappropriately influence a professional accountant judgment or behavior. तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। आज अगर मेरे किसी फ्रेंड की कंपनी है, मैं उसमें उसका ऑडिटर हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ, उसके साथ काम करता हूँ, रोज उसके साथ मैं बैठता उठता हूँ, उसके साथ कुछ मेरे फैमिली में फाइनेंशियल टर्म्स चल रहे हैं, कुछ पैसे का लेन देन चल रहा है, तो डेफिनेटली मैं उसकी जब रिपोर्टिंग करूंगा तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट वाला थ्रेट जो है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। उसकी बात करते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कई बार हम ऑडिट करते समय अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं और कई बार हम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के दौरान कुछ चीजें छोड़ जाते हैं, इंटेंशनली भी इनइंटेंशनली होता है। So that a professional accountant will not appropriately evaluate the result of the accountant or by another individual within the accountant firm or employing organization on which the accountant will rely एक्टिविटी। मेरे किसी स्टाफ मेंबर ने जाके वहां ऑडिट किया और उसका ऑडिट की रिपोर्ट मैंने उससे दी कि मैंने कहा बेटा तूने ऑडिट कर लिया, कहता सर कर लिया। मैंने क्या फाइंडिंग, उसने बोला ये फाइंडिंग है। मैंने उसी के ऊपर अप्लाई किया और सेल्फ रिव्यू किया, सिर्फ काम किया, उसी के बेस पर ही मैं रिव्यू करके उसे कंप्लीट कर देता हूँ विदाउट विदाउट लुकिंग अनदर थिंग। कुछ और एरियाज मैंने टच ही नहीं किए, सिर्फ मैंने उसके काम के ऊपर विश्वास किया और उसको फाइनल कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मेरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया। मैं चाहता तो जो उसने एरिया कवर किया था उसके अलावा जो एरिया छूट गया था उसको भी कवर कर लेता, बट मैंने विश्वास किया कि बेटा तूने कर लिया ना। उसने बोला सर मैंने कर दिया सर, मैंने हर तरफ से कर लिया सर, मैं ये फाइनल में सर मैंने ऑडिट कंप्लीट कर दिया सर, हर एंगल से देख लिया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट रह गया वहां। एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल प्रमोट ए क्लाइंट और एम्प्लॉइंग organization position to the point that the accountant's objectivity is compromised. मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि सर मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि मुझे ऑडिट के दौरान ये चीजें फॉलो करनी, और वो मुझे कहता है कि नहीं सर इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, और मैं कहीं ना कहीं उसकी हाँ में हाँ कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ प्रमोट ए क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन टू द पॉइंट दैट द अकाउंटेंट ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज। मैंने उसकी हाँ में हाँ कर दी, उसने मेरे को थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोला और मैं थोड़ा सा डर गया, और हाँ सर आप कह रहे हैं
या तो मेरी नॉलेज नहीं है, मैं वहाँ पे नॉलेज लैक कर गया, क्योंकि उसका एरिया था, उसकी पर्टिकुलर लाइन थी, मैंने हमारी बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पर भी यही हो रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं इस बात को रिपोर्ट करना है? ठीक है सर, आप कह रहे हो तो ठीक ही हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरी एडवोकेसी रेट है, वहाँ पर मैं अपने क्लाइंट की बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल लगाया क्लाइंट फैमिली के साथ कोई क्लोज रिलेशन है, वहाँ पर मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लगाते हुए देता हूँ, नेग्लिजेंस हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है, लास्ट में आप देखेंगे अकाउंटेंट विल बी टू सिंपैथेटिक टू देयर इंटरेस्ट और टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने उसको छोड़ दिया ड्यू टू फैमिली रिलेशन। तो दैट इज व्हाट, दैट इज फैमिलियरिटी ट्रैक। लास्ट वाला है इंटिमिडेशन ट्रैक। आप नीचे देखिए ना, लास्ट में इंटिमिडेशन ट्रैक के लास्ट में मैंने लिखा है एग्जांपल बैंक ऑडिट इन यूपी। ये मैंने लिखा हुआ है अपनी नॉलेज के लिए कि मुझे यहाँ पर ये केस बताना है आपको। क्या हुआ कि आज से कुछ साल पहले की बात है कि हमारी फॉर्म बैंक ऑडिट आया यूपी साइड, यूपी साइड का ऑडिट आया और हम यूपी में ऑडिट करने चले गए। हमारी टीम यहाँ से गाड़ी पे गई, जिसमें हम तीन तीन आर्टिकल थे, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंच के हमने वहाँ फोन किया, हमने कहा सर हम यहाँ इस बस अड्डे के पास पहुंच गए, तो आप हमें बताइए अब हमें यहाँ से ब्रांच की तरफ कैसे आना। तो उन्होंने बोला कि सर एक काम करते हैं, मैं आता हूँ आपको लेने। तो हमें लेने के लिए वहाँ बस अड्डे पे आते और हमारी गाड़ी में बैठ के हमारे साथ साथ ब्रांच की तरफ चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उन्होंने मेरे से एक चीज पूछी, कहते सिंह साहब कितने दिन का ऑडिट का प्लान बना कर आए हैं? मैं क्यों सर, आप ऐसे पूछ रहे हैं? लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, 6 दिन लगाएंगे। जैसे देखो आपके एडवांसेस कितने हैं, अब उसके बता के नंबर कितने हैं, तो मुझे लेजर स्कूटनी करनी है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे एमपी वगैरह चेक करने का नंबर अगर नंबर आपको प्रॉब्लम के टाइम लगेगा कुछ रिपोर्ट पे दो से काम तो 2 लगेंगे। इतनी देर में क्या हमारी गाड़ी तो 2 नहरें थी, तो हम बता रहे हैं, मैं तो आपको यहाँ के यूपी के हालात बता रहा हूँ कि यहाँ पे हालात ऐसे हैं। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ब्रांच में जाएं, चाय पानी पिए और डॉक्यूमेंट साइन करें और 5 बजे यहाँ से फ्री होके आप अपना दिल्ली के लिए वापस निकलें। तो कई बार ये ऐसे हालात हमें मिलते हैं। हालांकि हमने उस ब्रांच में ऐसा नहीं कि हमने शाम को ऑर्डर खत्म किया और घर चले आए, नहीं ऐसा नहीं। हम गए 2 दिन का काम था, तीसरे दिन हम उसको कंक्लूड किए, तीसरे दिन भी हम दोपहर तक वहाँ पे दोपहर को कंक्लूड करके उसके बाद हम हाथरस के रास्ते से दिल्ली की तरफ आए। तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे डर गए, हमने काम किया, जो फाइंडिंग थी सब दी, एमओसी भी साइन किया, एमओसी ने मेंशन भी किया। बट कहीं ना कहीं ये इंटिमिडेशन जो थ्रेट है कहीं कई बार ऑडिट के टाइम पे मिलता है और हमारे पास कुछ ऐसी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी भी नहीं होती। हम जब ऑडिट करने जाते हैं अपने लोकल स्टेट से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि फैमिली और बच्चे तो हमारे भी हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि द थ्रेट दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल बी deterred from acting objectively because of actual or perceived pressure, including attempt to exercise undue influence over the accountant. तो आपको ध्यान रखना है अपने आप को कि इंटिमिडेशन थ्रेट दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 टाइप के जो ऐसे थ्रेट हैं जो मैं ध्यान रखना है। ये पहला केस आ गया सर, सेक्शन 220, जिसमें आपको ये बताएगा कि जो हमने अभी तक जो हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा, हमने रिक्वायरमेंट पढ़ा, एप्लीकेशन पढ़ा, हमने थ्रेट पढ़े और हमने इंटरेस्ट पढ़े, सेल्फ इंटरेस्ट पढ़े। अब इसको प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में अप्लाई कैसे करना है इसको, अभी यहाँ तक क्लियर है? तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार कनिका जी से। कनिका जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर नो क्वेश्चन टिल नाउ। अभी तक ठीक चल रहा है? कितना टाइम है अभी हमारे पास? सर जितना आप चाहें, बस आज ऐसा होना चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए डाउट किसी को भी। देखिए अभी प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो मैंने सारा क्लियर कर दिया है। अभी यहाँ पर पहली एक सिचुएशन यानी कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर
पहला कह लो कि ये एग्जांपल है जिसमें कैसे वो लगती है, एप्लीकेशन कैसे लगते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, वो मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद कुछ रीसेंट अनाउंसमेंट है, जजमेंट है जो आई हुई है, वो मैं बता देता हूँ, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। तो इसको मैं पहले ये वाला बताता हूँ, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अभी 3:30 हुए मेरी घड़ी पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी है हमारे पास टाइम, क्योंकि इसके बाद ना फिर मेरा एक और है जहाँ पे मुझे मैनेज करना है। चलिए आगे चलते। Professional accountant are required to comply with the fundamental principle and applying the conceptual framework set out in section 120। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सर ये सेक्शन 120 है, ये हर केस में आएगा। तो आप देखिए प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में पहली लाइन में उसने 120 सेक्शन बोल दिया कि टू आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड एड्रेस थ्रेट। यानी कि आपको ये 3 स्टेप तो हमेशा हर किसी फैक्ट में प्रॉब्लम में करने हैं। पहला आइडेंटिफाई, फिर इवैल्यूएट, फिर एड्रेस। 220.2 क्या कहता है? Preparing and presenting information might create self interest। अब ये बात आती है सेल्फ इंटरेस्ट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। Intimidation or other threats to compliance with the one or more of the fundamental principles and the section set out specific requirement है, and application material relevant। अब वहां पर आ गया रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं, ये आ गया शेल वाला, and application material relevant to applying the conceptual framework in such circumstances। पहला क्या है? 220.4 का कहता है when preparing or presenting information a professional accountant shall है सर, ध्यान से रखेंगे, ध्यान, shall है, prepare or present the information in accordance with the relevant reporting framework where applicable। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था इंडियस का। अगर मैं कोई 250 करोड़ की टर्नओवर से कम वाली कंपनी, जिसके ऊपर स्पेसिफिक लिमिट से बिलो वाली कंपनी है, उसके ऊपर इंडियस नहीं लगते। अब इंडियस नहीं लगते तो उसका जो फॉर्मेट है वो भी नॉर्मल रहेगा उस हिसाब से। बट अगर इंडियस लग जाता है, इंडियस की एप्लीकेबिलिटी उसके ऊपर हो जाती है, तो मेरे को इंडियस के हिसाब से उसकी फ्रेमवर्क को अप्लाई करना। तो पहला पॉइंट कहता है प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि जो रेलेवेंट फ्रेमवर्क है, जो एप्लीकेबल है, इंडियस 1 है, इंडियस 1 कहता है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला इंडियस 1। तो उसमें बताता है कि किसी कंपनी के ऊपर जिसके ऊपर इंडियस एप्लीकेबल है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। सो फर्स्ट स्टेप में वही बताया है कि जो रेलेवेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वी हैव टू अप्लाई, शेल अप्लाई करने ही होंगे, इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, प्रिपेयर और प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट इज इंटेंडेड नीदर टू मिसलीड नॉर टू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम इनएप्रोप्रिएट। ना तो आपने नीदर टू मिसलीड, यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, कहीं पर आप उसमें कोई ऐड और उसमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट नहीं करेंगे जिससे कोई इंफॉर्मेशन मिसलीड हो, और टू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्चुअल, और किसी को इन्फ्लुएंस करो, जैसे मैंने मान लो ईपीएस बढ़ा के दिखा दिया, या मैंने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो हाइड कर दिए, फॉर्मेट में चेंज कर दिया, ताकि खर्चा किसी को दिखे ही नहीं मेरे इन्वेस्टर को, ताकि उनका वो जो डिसीजन है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, वो कहीं चेंज ना हो जाए। तो कहीं पर भी मुझे उसको मिसलीड नहीं करना, कहीं पर भी इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्चुअल की तरफ नहीं जाना। एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। तीसरा पॉइंट, present the fact accurately and completely in all material respect। यानी कि जो भी एप्लीकेबल है, जो भी उसमें एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली जो जो डिस्क्लोजर मुझे देने हैं, जो जो एप्लीकेबल हैं, चाहे वो मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, चाहे वो मेरे इंडियस में है, चाहे वो मेरे स्टैट्यूटरी लायबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो मेरे कंप्लायंस से रिलेटेड है, those are the like a disclosure required, mandatory required and important and have to be, वो मुझे completely उसके disclosure देने हैं और उसकी materiality भी define करनी है। Describe clearly the true nature of the business transaction or activities। अब ऑडिट करते समय कुछ ऐसे अमाउंट, कुछ परचेज में ऐसा कुछ अमाउंट मिल गया जो बोगस डीलर से परचेज, which is actually not a genuine purchase, तो मुझे उसका ऑडिट करते समय अगर कोई ऐसी बोगस परचेज मिलती है, कोई ऐसा बोगस डीलर मिल जाता है, तो मुझे उसको स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर में देना है, ताकि मेरा ये रहे कि डिस्क्राइब क्लियरली द ट्रू नेचर ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है
वो ट्रू एंड करेक्ट हुई है, जेन्युइन हुई है, इलीगल नहीं, लीगल। क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन ए टाइमली एंड प्रॉपर मैनर। अब मुझे पता है कि कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जो पर्टिकुलर इसी हेड में जाना है, तो उसकी मुझे प्रॉपरली करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड भी प्रॉपरली करना है, तो प्रॉपरली करना है, प्रेजेंट भी करना है। तो ये जो पहला सेक्शन 220 है, सिर्फ और सिर्फ बात करता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फोर्थ वन, not omit anything with the intention of rendering the information misleading। पहले ही मैंने बोला कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपने मेंशन नहीं करनी कि वो मिसलीड करे, और influencing contractual or regulatory outcome inappropriately। कहीं ना कहीं उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मिसलीड नहीं होना चाहिए, कोई भी रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन जो है वो इनएप्रोप्रिएटली अप्लाई नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली अप्लाई होना चाहिए। दूसरा केस आ गया कस्टडी ऑफ क्लाइंट एसेट्स। ये हमने देखा कई बार कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कुछ ऐसी चीजें कई बार क्लाइंट छोड़ जाते हैं कि सर आप ये मेरा लैपटॉप रख लो, सर ये मेरा, सर ये मेरा कंप्यूटर है, सर ये कोई भी एसेट हो सकती है। आपको गाड़ी दे गया, चलो गाड़ी रख लिया आपके पास, गाड़ी आप रख लो, थोड़े दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो जो कस्टडी ऑफ क्लाइंट एसेट है उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन 350 बात करता है। तो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जो अनाउंसमेंट वगैरह बतानी है कि पर्टिकुलर वो केस आगे हैं, पर्टिकुलर फैक्ट्स आगे हैं जहाँ पर जैसे सेक्शन 410 है जो फीस की बात करता है, फीस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अच्छा हाँ, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूँ। अभी एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट चल रही है इंस्टीट्यूट की, जहाँ पर आपको क्या करना है एज ए ऑडिटर, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, जितने भी ऑल ऑडिट ऑफ द क्लाइंट्स हैं, when the total fees generate from an audit client by the firm expressing the audit opinion represent a large portion of the total fees of that firm, the dependence on that client and the concern about losing the client create a self-interest or intimidation। मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऑडिट फॉर्म्स है जिनका मैं सिर्फ ऑडिट करता हूँ और उस ऑडिट से मेरे को 10 लाख रुपए आता है, कुछ पार्टी से मेरे को 10 लाख रुपए मान लेते हैं कि उससे मेरी ऑडिट फीस आती है, और उस 10 पार्टी में एक पार्टी ऐसी है जिससे फीस 6 लाख रुपए आती है। तो अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है, क्योंकि ये जो फीस वाला जो है इसमें ऑडिट से रिलेटेड क्या है, इसमें एक चीज नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप टोटल ऑडिट फीस जो आप रिसीव करते हैं क्लाइंट से, उस टोटल ऑडिट फीस का 15%, टोटल ऑडिट फीस मान लो 10 लाख, उसका 15% मान लो 1.5 लाख, कैलकुलेट करता है 1.5 लाख। अगर मोर देन 15% किसी एक पर्टिकुलर ऑडिट क्लाइंट से आप लेते हैं, देन आपको उसका डिस्क्लोजर देना है, उसको रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है वो आगे इंस्टीट्यूट हमें गाइड करेगा। हो सकता है जैसे हम यूटिन जनरेट करते हैं वैसे ही कोई इंस्टीट्यूट ऐसा पेज दे दे जहाँ पर हमें रिपोर्टिंग करना है कि मेरे पास 10 क्लाइंट हैं, 10 लाख रुपए ऑडिट फीस आती है, सिर्फ ऑडिट फीस की बात कर रहा है उसमें, वो वाले में, और उस ऑडिट फीस का 15% से ज्यादा किसी एक भी क्लाइंट से आता है, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, वहाँ पे रिपोर्ट करनी है। ये अभी आज का अनाउंसमेंट में आता है, उसके बाद रेगुलेशन भी आती है हमारे कोर्ट ऑफ एथिक्स के लिए कि 15% से ज्यादा अगर आप किसी की टोटल ऑडिट फीस की 15% से ज्यादा फीस अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट और उससे जो दूसरा जो उसकी रिलेटेड पार्टी है उससे लेते हैं कंबाइन में, मान लो एक मैंने ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लेता हूँ, बी उसकी सिस्टर कंसर्न है, तो उन दोनों का ऑडिट करता हूँ 15% से ज्यादा हो जाता हूँ, 15% से ज्यादा हो जाता है, तो मुझे उसका डिस्क्लोजर देना है। उसके ऊपर अनाउंसमेंट आई हुई है, तो दैट अनाउंसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आगे कवर होगी, ठीक है सर, तो वो अभी आगे बात करते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। ये फीस के अंदर ही ओवरड्यू का पॉइंट है, कंटीजेंट फीस है। कंटीजेंट फीस में कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर हमें इंस्टीट्यूट की जो कोड ऑफ एथिक्स की गाइडलाइंस है वो हमें कहती है कि आप जो फीस जो है आपकी वो परसेंटेज बेसिस पर नहीं ले सकते, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम फीस जो है परसेंटेज बेसिस पे ले सकते हैं, जैसे लिक्विडेशन के टाइम पे, जैसे और भी ऐसी चीजें, ऐसी चीजें यहाँ पर। तो ये रिलेटेड पार्टी का है 521 सेक्शन 51 बात करें। अब कहते हैं सर ये आ रहे हैं रीसेंट डिसीजन ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द बोर्ड। आई थिंक मुझे ये वाले कवर कर देने चाहिए, उसके बाद फिर जो मेरा जो नेक्स्ट जो एक और वेबिनार मुझे अरेंज करना है तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी।
ये रीसेंट डिसीजन मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। अगर कुछ पार्ट रह गया तो या तो मैं मेल कर दूंगा कनिका जी को, विशाल जी को, आप उसमें से एक बार रीड कर लेंगे। कुछ पूछना हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो वो मेरे से फोन करके बात कर लेंगे, मैं अभी नंबर भी दे दूंगा अपना। अदरवाइज यहाँ पर मुझे इसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं दोबारा सेकंड वेबिनार में कर लूंगा, क्योंकि ये है मेरे पास 155 स्लाइड। ओके, पहला रीसेंट डिसीजन, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे, कोड ऑफ एथिक्स की साइट पे पेज पे जाएंगे। अच्छा सर, उसमें जो ऊपर आ रहा है ना एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, इसको आप 1 जुलाई लेके चले सर, क्योंकि ये पुरानी वाली स्लाइड है, मैंने चेंज किया 1 जुलाई 2021। पहला रीसेंट डिसीजन, सीए फर्म में रजिस्टर्ड इटसेल्फ ऑन उद्योग आधार। आपने देखा होगा अभी आप क्लाइंट का उद्योग आधार बना रहे हैं, तो सीए फर्म को भी इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है कि सीए फर्म चाहे तो अपना उद्योग आधार नंबर जनरेट कर सकती है। ये क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है कि जब आप टेंडरिंग में जाएंगे, आप टेंडर फाइल करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी जो आपसे टेंडर में आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करके टेंडरिंग के केस में उद्योग आधार दूसरा रीसेंट डिसीजन है आज अगर मैं कंपनी में एज इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा हूँ, एज इंटरनल ऑडिटर में उसमें इंटरनल ऑडिट का पार्ट कर रहा हूँ, इंटरनल कंट्रोल को देख रहा हूँ, उसका ऑडिट का पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, ऑडिट चल रहा है मेरा रेगुलर, मेरा स्टाफ, मैं भी खुद वहाँ पे जा रहा हूँ इंटरनल ऑडिट करने। अगर मैं चाहूँ तो मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर मैं चाहूँ उस कंपनी के शेयर्स खरीदना, एक्वायर करना, तो मैं कर सकता हूँ। ये रिसेंट डिसीजन में आ चुका है। It is not permissible for the member to use WhatsApp to send messages to make people aware about this practice and mention the service provided therein. इंस्टीट्यूट कहता है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी practicing chartered accountant permissible for the member to use WhatsApp to send message। मैं अपने क्लाइंट को या लोगों को, क्लाइंट को करता हूँ तो वो एक अलग चीज है, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, क्योंकि वो क्लाइंट मेरे हैं। बट कुछ ऐसे जो मेरे क्लाइंट नहीं है, बट मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ और उनको उनको इंड्यूस करता हूँ कि मैं इतनी सर्विस देता हूँ, ये सर्विस देता हूँ, मैं जीएसटी का काम करता हूँ, मैं इनकम टैक्स का काम करता हूँ, मैं इतनी फीस लेता हूँ, मेरे मेरे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरे पास इतनी सारी डिग्रीज हैं, ये है वो है। सो दैट इज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट व्हिच इज नॉट परमिसिबल फॉर द मेंबर्स, कि वो व्हाट्सएप पे नॉर्मल जो जो आपके क्लाइंट नहीं है उनको आप अवेयर करें कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ और ये मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। नहीं सर, दिस इज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, दिस इज नॉट अलाउड। A chartered accountant in practice being a director solicitor in a company cannot sign ROC। अब हमने सुना है कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी कंपनी में डायरेक्टर हैं, बट they are not working as a managing director of the company, they are not a director solicitor। अगर वो वहां पर वहां पर डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट नॉट अ वर्किंग डायरेक्टर, तो मैं उस केस में बोलता हूँ कि अगर वो आरओसी का फॉर्म साइन करते हैं, ठीक है ना, कैनॉट साइन द आरओसी फॉर्म। अगर वो आरओसी का फॉर्म साइन करते हैं और वो वहाँ पे डायरेक्टर भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और साथ में कंपनी के आरओसी के कंप्लायंसेस में उनके फॉर्म को भी साइन करते हैं, तो इट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो डायरेक्टर सिंप्लीकेटर कैनॉट साइन आरओसी फॉर्म ऑफ द कंपनी। अगर वो साइन करेगा तो वो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट इस कंपनी में है, and he is taking the responsibility on the compliances of that company with this with this continuation of the practice part. So it's a professional misconduct. A chartered accountant in practice can act as authorized representative of a foreign company, provided he is not the auditor of that company। आज मेरे पास एक फॉरेन कंपनी आती है और मुझे कहती है कि इंडिया में आप मेरे अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, मैं उसके लिए जीएसटी का नंबर ले देता हूँ, उसके इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस करा देता हूँ, इनकम टैक्स में उसके केस के असेसमेंट कराने जाता हूँ, या उसके कोई लाइसेंसिंग वगैरह का काम करता हूँ। सो एज ए अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं काम करना चाहूँ कर सकता हूँ, बट इन सेम कंपनी में आई कैन नॉट वर्क एज ए ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। अगर मैं करता हूँ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नेक्स्ट डिसीजन, it is permissible for two or more chartered accountants in practice collectively to have joint training session for their client on GST and share the fees collected from the client thereon। इंस्टीट्यूट ने प्रोफेशनल एथिक्स में बोला है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ फीस शेयर नहीं कर सकता,
बट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर अगर काम करे तो वो फीस शेयर करता है। जनरली होता भी ऐसा ही है, बैंक ऑडिट में ऐसा होता है, और कई ऐसे असाइनमेंट होते हैं जहाँ पर असाइनमेंट के कुछ एरियाज मैंने किए, कुछ एरिया दूसरे ने किए, तो हम आपस में फीस शेयर करें, तो वी कैन डू दिस, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बट यहाँ पर जो रिसेंट डिसीजन आया उसमें क्या बोला है इंस्टीट्यूट ने कि दो चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके अगर जीएसटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाइंट को, और उस ट्रेनिंग के दौरान जो उनको फीस मिलती है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल। A chartered accountant in practice can provide service through kiosks only if service provided are professional activities of the practicing chartered accountant permitted under the act. अब कियोस्क सर्विस क्या होती है? आपने जाके पंजाब नेशनल बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक मशीन लगी होती है, तो बेसिकली एक मशीन लगी होती है जिसमें डिस्प्ले होता है, जहाँ पे आप जाते हैं और इनको पंजाब नेशनल बैंक से एफडी से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे तो अपने ऑफिस में अपने ब्रांचेस में ऐसी मशीन लगा के ऐसी सर्विस दे सकता है, ऐसी सर्विस दे सकता है, ऐसी कंसल्टेंसी दे सकता है, बट वो परमिटेड होनी चाहिए अंडर द एक्ट। तो इट मींस जब भी आप ये कियोस्क की सर्विस अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट करने से पहले गाइडलाइंस की जरूर पढ़ें। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस इज अलाउड टू टेक ई-रिटर्न रजिस्ट्रेशन। कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, यानी कि मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम वर्किंग इन द चार्टर्ड फर्म एज एम्प्लॉय, सो आई एम इन सर्विस, so I am allowed to take a e-return registration if it does not conflict with employment obligation. अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर के साथ कनिका जी, Yes, sir. रीसेंट डिसीजन तक आई हैव कवर ऑलरेडी। अब ये आप देखेंगे क्लैरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। जो मैं क्लैरिफिकेशन की बात कर रहा था, द वेरी फर्स्ट रीसेंट क्लैरिफिकेशन वो 15% वाली जो मैं बता रहा था, इसमें आप देखेंगे ना सेकंड पैराग्राफ जो येलो वाला है, इसकी थर्ड लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है 15% ऑफ द टोटल फीस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ तक मेरे रीसेंट डिसीजन कवर हो चुके हैं। न्यू कोड ऑफ एथिक्स 2019 रिवाइज ऑलरेडी कवर्ड, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑलरेडी कवर्ड, जितने भी थ्रेट होते हैं ऑलरेडी कवर्ड, वो सब मैंने कवर कर दिए। अगर अब आप मुझे बताएं अब क्या करना है आगे। Sir, questions. We can take up the questions right now. ओके, क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, क्योंकि उस हिसाब से फिर मुझे नेक्स्ट वेबिनार की तैयारी करनी है। प्लीज जी, कितने क्वेश्चन हैं? Sir, first question from Amit ji is, what is the status of Part B of Code of Ethics currently? पार्ट बी, मैंने आपको बताया ना कि जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी को अगर आप देखें ना, पार्ट ए तो पार्ट 1 में कवर हो गया, और जो पार्ट बी है वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में डिवाइड कर दिया गया, सेक्शन वाइज कर दिया गया। आपको मैंने आपको बताया था ना सेक्शन, वो जो फीस वाला बताया था, एक मैं आपको दोबारा दिख रहा था, क्योंकि पहले जो चलता था वो क्लॉज वाइज चलता था, अभी जो चलता है वो सेक्शन वाइज चलता है। तो जैसे फीस वाला भी दिखाया था उसी हिसाब से 1 मिनट देखिए, ये देखिए 521, तो 521 जो है ये बात कर रहा है फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 वाला जो है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये स्पेसिफिक फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है। और जब मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहा था, वहां पर इंस्टीट्यूट ने यही बोला कि रिक्वायरमेंट में इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि स्पेसिफिक केसेस और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को अलग से स्पेसिफाई किया गया है। तो यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे सिर्फ रिलेटेड पार्टी की बात हो रही है तो सेक्शन 521 एप्लीकेबल है। ऐसे आप फीस की बात करेंगे तो उसका सेक्शन 310 है। ऐसे आप 15% उसकी बात करेंगे लोन्स वाले की, तो वो आई थिंक 510 है। तो अलग अलग सेक्शन फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग केस से अलग अलग सेक्शन लगेगा। तो अब वो क्लॉज वाला सिस्टम नहीं। जी, तो अमित जी आई थिंक क्लियर है। जी sir, next question is, can a CA be internal auditor for one location of a company and GST auditor for another location of same company? नहीं, प्रॉब्लम है, सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। So sorry, this is not possible. एक इंटरनल ऑडिटर एक कंपनी का एक लोकेशन का किसी और लोकेशन सेम कंपनी का जीएसटी ऑडिटर नहीं हो सकता। वो जो मैंने इंटरेस्ट की बात की थी उसमें जो पहला पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट वाला, वही लग जाएगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही। जी, एनी अदर क्वेश्चन?
question is, can a GST consultant be a GST auditor of the same company whom he is giving consultancy? Yes, possible. ये possible, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हम भी अगर किसी कंपनी के GST ऑडिटर हैं तो उससे रिलेटेड GST के कंप्लायंस भी हम डेबिट रिटर्न में भी हम खुद ही करते हैं. So I think you have joined late, so let me remind you, these revised code of ethics are applicable from 1st July 2020 and not from 1st April 2020. Yes, yes, वो मैंने मेरी जो PPT है उसमें मैंने 1st अप्रैल लिखा हुआ है, क्योंकि PPT मेरी बनी हुई है, ये बनी हुई है जनवरी 2020 की, क्योंकि तब से मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसके ऊपर, कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर, तो तब से 1st अप्रैल ही मेंशन है. बट रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने इसकी डेट चेंज की है, ये कोरोना की वजह से भी, और कुछ ऐसी चीजें जो बैकएंड में इंस्टीट्यूट अभी भी अप्लाई कर रहा है, सो इट्स टेकिंग टाइम, सो दैट इज व्हाई द न्यू डेट इज 1st जुलाई 2020. So one more question from our audience is there a possibility of more changes in this revised code of ethics? Could be possible. Possible है, yes. अभी भी, क्योंकि अभी देखिए कोविड को लेके भी अभी बहुत सारी चीजें हैं. अभी आप देखेंगे कि रिसेंट आया है, रिसेंटली जजमेंट आई, जैसे 15% से पहले जो आई है, वो आई है कि अगर आप प्रीवियस ऑडिटर, जैसे मैं शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट 1 में क्लॉज 8 है, इसमें वी हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, तो प्रीवियस ऑडिटर से हम बात करते थे क्लॉज 8 में, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट शेड्यूल का, राइट. तो उसमें क्या होता था कि रजिस्टर्ड एक लेटर जाता था, रजिस्टर्ड एडी जाती थी. बट अभी रिसेंट जो अपना अनाउंसमेंट आई है, उसमें उन्होंने इंस्टीट्यूट में ये बोला है कि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस की वजह से अगर आप किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से रजिस्टर्ड एडी के थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो आप उसको मेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. बट कंडीशन ये है कि आपकी ईमेल आईडी और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की ईमेल आईडी, जिन दो ईमेल आईडी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये दोनों ईमेल आईडी दोनों पार्टी की, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट की, प्रीवियस ऑडिटर और करंट में जो आप हैं, इन दोनों की आईडी इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड आईडी होनी चाहिए. ये मतलब जो ईमेल आईडी आपकी आईसीए के रिकॉर्ड में है, उसी आईडी के थ्रू ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं. दैट इज द वैलिड. Sujeet sir, जी. next question is, when volume 2 of code of ethics is expected? अभी देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें कोड ऑफ एथिक्स का जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो कमेटी के जो मेंबर हैं, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं. सो होपफुली मुझे जहां तक लगता है कि ये आई थिंक सितंबर के बाद ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट ने अपनी जितनी भी उनकी कोचिंग चलती थी, जो फेस टू फेस चलती थी, वो सभी के ऊपर बैकएंड पे वो ऑनलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं. अभी रिसेंटली वो एमसीएस की क्लासेस जो है वो भी उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दी हैं, लेक्चर्स. तो अभी कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ई लेक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं. so they are taking time, so that is why I don't think so कि सितंबर के बाद भी मुझे लगता है मुश्किल ही है. हो सकता है स्टार्टिंग में अगले साल जनवरी 21 में पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब तक ये कोरोना का इम्पैक्ट भी खत्म हो जाएगा और इंस्टीट्यूट के ऊपर ये जो ई क्लासेस का जो बर्डन है, ये भी थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा. So yes, I think sir आपने बहुत अच्छे से सब सारी की सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए हैं, और न्यू कोड ऑफ एथिक्स से जो हमें फेमिलियर कराया है, that is very appreciable. We really thank you. And yes, PPT will be shared to everybody. Yes, PPT मैं आपको definitely share कर दूंगा. So thank you Jagjeet ji for enlightening us on this, and thank you all the attendees to be a part of this webinar. So with this note, we will like to end this session. Thank you.